Afternoon, sir. गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, सर कैसे हैं आप लोग? फाइन। Thank you very much, my dear students. My dears, once again, I welcome you in today's session. And today, if you have no objection, we are about to start chapter number 4 from First Flight from the Diary of Anne Frank. एक्सक्यूज मी सर। Yeah. सर आपने उस दिन बोला था कि ये जो पोयम है इसका मैं पोएटिक डिवाइस बताऊंगा मंडे को। ओ बेटे, अब पोएटिक डिवाइस अब इसको शुरू करता हूँ, उसके बाद आपको बता दूंगा। जब उसका क्वेश्चन आंसर बताऊंगा उससे पहले बता दूंगा, ठीक है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। मिस स्नेहा गुप्ता, प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटे। Akhilesh Yadav, please mute yourself. Bete, a very important chapter we are going to start from the Diary of Anne Frank. Bete, let me tell you why I'm saying that this is very important chapter, because definitely in your board examination, questions of 5 marks will come from this chapter. इस चैप्टर से 5 अंक के प्रश्न तो आपसे पूछे ही जाएंगे। So bete, let me at the very first mute you all. Bete, from the Diary of Anne Frank, once again I am repeating this, from the Diary of Anne Frank, chapter number 4, which I have selected from your First Flight book, is very important in the view of examination, means board examination. My dears, just excuse me 1 second. So students, this chapter from the Diary of Anne Frank has some confusions. Let me off your confusion. At the very first, the word diary. Diary, bete, most of the students can write, वो भूल कर ही समझ लो, भूल करके ही हम लोग डेयरी लिख देते हैं। So let me clear this, that the spelling of diary word is D-I-A-R-Y. ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? Why I am telling like this, बेटे? The main reason is, excuse me, hello, हाँ बोलो भाई, हाँ भैया बोलो। अच्छा ठीक, अच्छा सुनो ना, पूछ करके आ जाओ, स्कूल बिल्डिंग में जाना है और इस बनवाल सर से मिलना है, पूछ करके आ जाओ, ठीक है? हाँ सॉरी डियर स्टूडेंट्स। तो डियर माय स्टूडेंट्स, व्हाट आई वाज टेलिंग यू, द वर्ड डायरी, इट हैज स्पेलिंग कंफ्यूजन। बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, डायरी को डेयरी लिख देते हैं। सो प्लीज
Clear this. The spelling of diary is D-I-A-R-Y. Now, the second thing, who is the writer, who is the author of this chapter? Actually, Anne Frank herself. Anne Frank herself. बेटे यू कैन रीड दिस वर्ड एनी, इसको एनी भी आप पढ़ सकते हो. एन फ्रैंक, एन फ्रैंक, एन फ्रैंक, एन फ्रैंक. बेटे now from the diary of Anne Frank, it means, what is the meaning of the title? What we are going to study in this chapter, chapter number 4, what we are going to study, जो कुछ भी हम पढ़ने जा रहे हैं, has been selected from where? From the diary of Anne Frank. Means, what the story we are going to study, जो story हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको कहां से लिया गया है? From the diary of Anne Frank. बेटे, because Anne Frank was a diarist. Now let me clear who is a diarist. बेटे, who is a diarist? One who writes diary is called a diarist. जो डायरी लिखता है उसे डायरिस्ट कहा जाता है. डायरी लिखना, टू राइट अ डायरी is very tough task. It's not very easy. How much I tell you related to diary will be less. Really, it's very tough task to write a diary, to maintain a diary. Because we may have, if you are going to write a diary, or if you think to write a diary, you will have to face a lot of difficulties to find out all the events of your childhood. मंथली अगर डायरी आपको लिखना है तो एक मंथ में जितनी सारी समस्याएं होती हैं उन सबको मेंशन करना होगा, जितनी घटनाएं होती हैं उन सबको मेंशन करना होगा. अर्ली डायरी लिखते हैं तो पूरे वर्ष भर में जितनी घटनाएं घटी हैं आपके साथ वह सब उसमें मेंशन करना होगा. तो रियली इट्स वेरी टफ टास्क, इट्स नॉट वेरी इजी. अब नाउ अ क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर इन आवर माइंड्स की एन फ्रैंक कौन है? तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं. लेट मी टेल यू अबाउट एनी फ्रैंक. बेटे, द फुल नेम ऑफ एनी फ्रैंक इज एनालाइज. एनालाइज इनका पूरा नाम है, एनालाइज मैरी. इट विल बी गिवन इन योर बुक. नाउ फ्रैंक, फ्रॉम वेयर फ्रैंक हैज कम. अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रैंक तो इनकी टाइटल है, बट फ्रॉम वेयर दिस वर्ड हैज कम, आपको मैं बताऊं. बेटे, एक्चुअली एन वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफोर्ट. फ्रैंकफोर्ट नाम के शहर में ये पैदा हुई थी. बस उस शहर का नाम इसके नाम के साथ जुड़ गया, एज आई अंडरस्टैंड. क्योंकि एक गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, उनका नाम ही है, हिज नेम इज मजरूह सुल्तानपुरी. मीन्स ही बिलोंग्स टू सुल्तानपुर. दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड मजरूह सुल्तानपुरी. शकील बदायूनी means the person who belongs to Badaयूं is a district. Badaयूं is called Badayuni. Shakil Badayuni. The person who belongs from Gorakhpur is called Gorakhpuri, as Firak Gorakhpuri. रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी. तो बेटे कुछ ऐसे नाम हैं जिनके नाम के साथ जिस शहर के वो हैं उनके शहर का नाम जोड़ दिया जाता है.
The same thing is happening here. Anne was born in the city of Frankfurt. That is why Frank word has been taken from her city where she was born. That is why her name is Anne Frank. आगे चल करके एनालाइज मैरी एन फ्रैंक के नाम से जानी गई। अब एक प्रश्न और उठता है, वन क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर, ये आप नहीं जानते, यू डोंट नो अबाउट दीज क्वेश्चंस, पर मैं आपको बता रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन? हम इनकी डायरी को क्यों पढ़ेंगे? किसी के पर्सनल डायरी को पढ़ना ठीक नहीं होता, फिर इनकी डायरी को हम क्यों पढ़ेंगे? बेटे, because Anne Frank was died in the age of 15. Anne Frank was died in the age of 15. मात्र 15 वर्ष की उम्र में ये मर गई थी। She was died in the age of 15. Now we can think, अरे 15 वर्ष, हे, एक 15 वर्ष की लड़की की डायरी को हम क्यों पढ़ेंगे? आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है? बेटे, in all world 17 languages, in 17 languages this diary can be converted. इस डायरी को विश्व की 17 भाषाओं में छाप करके और लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। इट्स नॉट वेरी लाइट थिंग, ये बहुत हल्की बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है कि एक 15 वर्ष की लड़की के द्वारा लिखा हुआ डायरी, बाप रे बाप, इतनी सारी भाषाओं में, आखिर उस डायरी में क्या है? यू वुड बी ऑल्सो थिंकिंग कि उस डायरी में क्या है। तो बेटे, इट्स माई compellment that I can't explain that what she has written in her diary completely, because I have no time. Only what it is given in your book, उसकी डायरी में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही आपकी बुक में दी गई हैं, सिर्फ उन्हें ही हमको पढ़ना है। एक्चुअली उनकी डायरी का शुरू में नाम था द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल, द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक छोटी सी बच्ची की कहानी। It is the autobiography. Two words come, दो शब्द आते हैं, एक बियोग्राफी आता है और एक ऑटोबियोग्राफी आता है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। बियोग्राफी और दूसरा ऑटोबियोग्राफी। बेटे, दोनों का मतलब होता है जीवनी इन हिंदी, but what's the difference between these two words? Biography is written by others. Biography is written by others. और ऑटोबियोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा means autobiography is written by himself or herself. गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखा, means Gandhi has written, Mahatma Gandhi, Mr. M.K. Gandhi has written his autobiography. लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने गांधी के बारे में अगर कुछ लिखा है तो वो बियोग्राफी है। As I think कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा बियोग्राफी और ऑटोबियोग्राफी में क्या अंतर है। The difference, what is the difference between biography and autobiography? Marius, if you want to write about someone from his childhood to last stage of his life, यदि शुरू से लेकर के अंत तक अगर आप किसी के बारे में लिखना चाहते हैं तो बेटे वह बायोग्राफी होगा। बट ऑटोबियोग्राफी कोई दूसरा नहीं लिख सकता है, इसे तो अपने आप को ही लिखना पड़ेगा। इसको आत्मकथा कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने आत्मकथा लिखा है, ऑटोबियोग्राफी अपना लिखा।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द बुक नेम इज, दिस इज नॉट द बुक नेम which has been written by Anne Frank, the story of a young girl, the story of a young girl, एक छोटी सी लड़की की कहानी। और उस बुक से, उस डायरी से, उनकी डायरी का नाम है, उस डायरी का नाम है डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और ये जो चैप्टर हमारा है, जिसको हमारे बीच परोसा गया है, प्रेजेंट किया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है, उसको कहां से लिया गया है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। बेटे अभी तक जो कुछ मैंने बताया क्या आपको समझ में आया? लेट मी अनम्यूट यू, जरा आपसे बात कर लूं। टेल मी माय डियर्स, अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको बताया आपको समझ में आया? बेटे इज देयर एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओह, मिस खुशी सिंह, रोहित, स्नेहा, अदिति गुप्ता, आदित्य प्रताप सिंह, इट मीन्स यू हैव नो डाउट। थैंक यू बेटे। नाउ लेट मी टेल यू, इस डायरी को कब लिखा गया अब मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली हुआ क्या था कि what had happened in 1947, in 1947 the diary was written by Anne Frank and the time consumed 2 years, 2 वर्ष लगे इसको लिखने में। 2 वर्ष तक वो कहीं और थे, इसलिए उनको लिखना पड़ा, और 2 वर्ष लगभग लग गए इसको लिखने में। अब आपको मैं और कुछ बताता हूं तब ये चैप्टर शुरू करूंगा। बेटे एक्चुअली एन फ्रैंक was born in a Jewish family. Jewish मतलब यहूदी होता है, यहूदी फैमिली में आप जो है जर्मनी में पैदा हुई थी, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में। और उसके बाद वहां इनका बचपन बीता। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग नीदरलैंड में चले आए थे, नीदरलैंड चले आए थे। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, एंड इट वाज गोइंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन एन फ्रैंक केम टू नीदरलैंड टू लीव हिज बर्थ प्लेस जर्मनी। बेटे जब वो ये सब लोग, जब इनके पूरे परिवार के लोग जब नीदरलैंड में आ गए थे, तो उस समय वहां पर एक बोलबाला शुरू हुआ था, यहूदियों को खत्म करो, भगाओ नहीं, खत्म करो। इफ दे आर डाइंग लेट देम डाई और किल देम एट एनी कास्ट, दे मस्ट नॉट लाइव। किसी भी कीमत पर वे जिंदा नहीं रहने चाहिए, उनको मारना होगा। फिर ये कर कौन रहा था? One word, a word comes twice, thrice in your book. Nazi. In SST subject, definitely you must have been told about Nazi. Who were Nazis? नाजी लोग कौन थे? बेटे जर्मनी का एक तानाशाह था, आप जानते होंगे, a well known dictator of Germany, Hitler, Adolf Hitler. He was the chief of Nazi. जो उसको मानने वाले, उसकी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, वे सब नाजी कहलाए।
वो यहूदियों को समाप्त कर देना चाह रहे थे। क्यों? अब तो एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि वो तो जर्मनी में थे, फिर नीदरलैंड में, बिकॉज दे all Nazis had gone to Netherlands to give death to all the Nazis. सभी नाजी को डेथ देने के लिए, यहूदियों को मार देने के लिए नीदरलैंड तक पहुंच गए थे। और चूंकि उनका बोलबाला वहां पर हो गया, वे सब लोग वहां पर अपना नेतृत्व करने लगे, वहां का शासन उनके हाथ में आ गया, उनके शासन की बागडोर इनके हाथ में आ गई, नाजी लोगों के हाथ में आ गई। तो ये यहूदियों पर जुल्म करना शुरू कर दिए। यहूदियों को वाई दे वांटेड टू किल ऑल द जीविश पीपल, बिकॉज उनका यह मानना था कि दे आर नॉट फेयर, they are not suitable for the life, for the reign of Nazis। क्योंकि उनका मानना था कि ये नाजी लोगों की उन्नति को नहीं देख सकते हैं। बस उनके मन में ये विचार आया, द आइडिया केम इन देयर माइंड कि इन सभी यहूदियों को मार दिया जाए। तो बेटे सभी यहूदियों को मार दिया जाए, वहां पर पूरा दंगा जैसा माहौल उत्पन्न हो गया। इस कंडीशन में एन फ्रैंक के पिताजी अपने छोटे से परिवार को लेकर के और वहां से भागे जहां वो थे, और वहां से भाग करके उन्होंने एक जगह शरण लिया, वेयर दे वर इन शेल्टर। जहां वे शरण में थे, दे स्पेंड 2 years, वहां 2 वर्ष तक वो छिपे रहे। और बेटे वेयर दे हैड स्पेंड 2 years, एन एंड हर फैमिली मेंबर्स विद हर फादर, विद हर मदर, जो भी उनके थे, वहीं 2 वर्ष जहां पर ये लोग शरणार्थी बन करके रह रहे थे, जहां पर छिपे हुए थे, वहीं 2 वर्ष तक रहे। और उन्हीं 2 वर्ष में उस छोटी सी बच्ची ने उस युद्ध को लेकर के, यहूदियों के प्रति गलत मानसिकता को लेकर के जो कुछ भी महसूस किया था, उस बच्ची ने अपनी डायरी में मेंशन किया। और वह डायरी कब मिली तुरंत पता नहीं चली। फिर उनको वहां से पकड़ लिया गया। वेयर दे वर हाइडिंग, दे हैड बीन कैप्चर्ड फ्रॉम द एयर। जहां वो छिपे हुए थे, वहां से उनको पकड़ लिया गया था, पकड़ लिया गया। इस बीच एन वॉज डाइड, एन की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ एन फ्रैंक, द डायरी वॉज फाउंड। उनकी जो डायरी थी वो मिली। तो तब जाकर के बेटे उस डायरी को छापा गया। 1945 में वह मरी और 1947 में वो डायरी पब्लिश की गई और लोगों तक पहुंचाई गई। क्या उसने कुछ लिखा था, हम आपको पूरी किताब के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन जो आपकी बुक में दिया गया है ये हम आपको अवश्य बता सकते हैं। तो एक बार पुनः मैं आपसे पूछना चाहूंगा, once again I would like to talk to you that how much you are getting what I am teaching you, what I am telling you. So dears, don't get tiredness, bete. A very important chapter is going on. सर हाँ बेटे, सुनाई दे रहा है? यस सर, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की ये क्या है, उसका टाइटल है क्या डायरी का? हाँ ना, Anneliese Mary Anne Frank, June 12, 1929, February, March 1945, means Anneliese Mary, जिसको एन
फ्रैंक कहा गया 12 जून 1929 को, फरवरी या मार्च, इट्स नॉट क्लियर, वह पैदा हुई थी, बट शी वाज died in 1945. Means nearly in the age of 15 she was died. बेटे, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आपके लिए पहली बार ऐसा हो रहा है, not for me, but this is first time when you are getting a person who is only about 15 years old and उसकी राइटिंग को हम लोग पढ़ रहे हैं। वरना 15 साल का तो हमारे यहाँ 9th में रजिस्ट्रेशन होता है, इफ यू डोंट माइंड। 15 साल की बच्चियों का, बच्चों का तो रजिस्ट्रेशन होता है। दे कांट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, लेकिन शी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, शी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, शी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, माय डियर्स। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द राइटिंग ऑफ एन who was died in the age of 15. Was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World War II. इसका मतलब कि वह एक जर्मन लड़की थी, जर्मनी में पैदा हुई थी, और वो जन्म से यहूदी थी। बाय बर्थ शी वाज जिविश गर्ल, यहूदी थी। यहूदी एक हमारे यहाँ का धर्म है। यहूदियों की संख्या बहुत कम रह गई है इस विश्व में। जिसने ये डायरी तब लिखा था जब वो अपने परिवार के साथ और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी, जब दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही थी या दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था। तो हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम, मतलब एम्स्टर्डम जब उनकी फैमिली मूव कर गई थी, चली गई थी, आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी, जब जर्मनी में नाजियों का एडोल्फ हिटलर का तानाशाही चल रहा था, उस समय ये लोग एम्स्टर्डम में चले गए थे, बट वर ट्रैप्ड, और जाकर के वहां छिपे हुए थे, लेकिन वहीं से इनको ट्रैप कर लिया गया। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड चले गए थे, और जब नाजियों का ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय नीदरलैंड तक पहुंचा, तो उनके हाथ वहां तक भी पहुंच गए, और जहां ये लोग छिपे हुए थे इनको ट्रैप किया गया। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, अब one question will be coming into your mind. Otto Frank इनके पिताजी का नाम है। तो आप कहेंगे कि सर, आप कह रहे हैं ये शहर का नाम है और ये तो उनके पिताजी का नाम है, ओटो फ्रैंक। बेटे, एक्चुअली द टाइटल कम्स फ्रॉम द सिटी बिकॉज फ्रैंकफर्ट वाज द सिटी। सबसे पहले उस शहर का नाम पिताजी के नाम के साथ जुड़ा, फिर बेटी के नाम के साथ जुड़ा। तो मतलब कि जुलाई 1942 में उनके पिता फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में जो है वो छिपे हुए थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 years जब बीत गया, 2 वर्ष, द ग्रुप वॉज बी ट्राइड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्शन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मॉर्गॉट फ्रैंक। 2 साल छिपे रहने के बाद ग्रुप को पकड़वा दिया गया और कंसंट्रेशन कैंप की व्यवस्था जो थी उसमें उसको ले जाया गया, जहां पर एन को टाइफाइड हो गया था। और बेटे, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण एन की मृत्यु हो गई। उसके जो पिता ऑटो फ्रैंक थे, कहा गया, हाँ,
Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been shaped. अब उनके जो पिताजी थे ऑटो, जो केवल अकेला बचा हुआ था, उसमें सब नेस्तो नाबूद हो चुके थे, सब लोग खत्म हो चुके थे, अब वो अकेले बचे हुए थे. When the war was ended, जब युद्ध समाप्त हुआ तो he was alone living, केवल वो अकेले जी रहे थे उस फैमिली से. तो जब युद्ध समाप्त हो गया, he came back once again Amsterdam, and there at where they were hiding before, जहां वो पहले छिपे हुए थे, he had found the diary of his daughter. एन की डायरी वहीं पर पड़ी हुई थी. तो convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. इस नाम से उन्होंने वो डायरी पब्लिश कराया कि भाई उनकी बेटी का एकमात्र ये रिकॉर्ड है, इसको हम पब्लिश कराते हैं. उसका नाम उन्होंने दिया, उनके पिताजी ने, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. ये डायरी उनको कब दी गई थी? 13वें जन्मदिन पर दी गई थी. 13वें जन्मदिन मीन्स जब उनका 13वां सेलिब्रेशन चल रहा था, तो वो डायरी खाली ही उसको दी गई थी एन फ्रैंक को. डायरी को बाद में उसने भरा जब वो लोग पकड़ गए थे. तो द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम June 12, 1942 until its final entry of August 1, 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. मतलब बहुत सारी भाषाओं में, डच भाषा में पहले इसका अनुवाद हुआ, उसके बाद विश्व की कई सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ और ये खूब चली. संसार भर में इसको लोग बड़ा पसंद किए. There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. डायरी पर आधारित कुछ फिल्में, टेलीविजन व नाटकीय निर्माण और एक ओपेरा भी बन चुका है. इस डायरी पर फिल्म भी बन चुकी है, एक ओपेरा भी बन गया है. ओपेरा मीन्स ए सॉन्ग. नाटकीय निर्माण भी कुछ इससे लिया गया है. Described as the work of a mature and insightful mind, whether she was 13 or 14, but she had a mature mind. भले ही वो 13-14 साल की थी, लेकिन उसके पास जो सोचने की क्षमता थी वो एकदम मेच्योर थी. मेच्योर लोगों की तरह वह सोचती थी. एज राहुल सांकृत्यायन, बिल्कुल उन्हीं की तरह वह मेच्योर थिंकिंग वाली थी. तो एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के काम के रूप में वर्णित यह डायरी क्या करती है? नाजी सत्ता को, द डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन. व्हेन नाजी वर रूलिंग, सारे नाजी जो थे जहां वहां पर जब वो रूल कर रहे थे, उस समय जो उनकी हालत थी, उन सभी चीजों को उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन किया है. एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट renowned and discussed of the Holocaust victims. मतलब फ्रैंक होलोकास्ट की सबसे अधिक जानी मानी और चर्चित शिकार बन चुकी थी. They were victims, वे लोग शिकार थे किनके? नाजियों के. और ये भी बहुत बड़ी शिकार हुई. ये तो इस तरीके से शिकार बनी, इसकी मृत्यु तक हो गई. तो मायरियस, आज हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा. अगले दिन हम लोग फिर से इसको शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन कमिंग 2 days वी विल फिनिश द चैप्टर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे.
only 1 minute is remaining. Then let me talk you. If you have any type of doubt, if you want to ask any type of question, you put up your question, bete, please. सर प्रेसिफिकेशन मतलब क्या बेटे? सर ओपेरा, Opera type of song. बेटे, Okay. सर have you पैरिसिफिकेशन watched? मतलब हाँ, पैरिसिफिकेशन क्या करियो बेटे? सर स्पेलिंग है PERSECUTIONS। अच्छा, persecutions. यस सर, इसका मतलब क्या होता है? हेलो, सर जीविस कल का नाम है। ओहो, persecution means बेटा मीनिंग जानना चाहती हो ना?